Hello friends, welcome to Kalyani IS Academy. In the previous lecture, we have studied international trade and balance of payment, foreign direct investment, role of foreign capital and multinational companies, also import-export policy. In this lecture, we will study and understand international organizations. So let's start the topic with Bretton Woods Conference. See, there was a huge impact of World War II and millions of people were dead in the World War II. Also, world economy collapsed. To restore this collapsed world economy, a conference was held in Bretton Woods City, New Hampshire in USA, and this conference was known as Bretton Woods Conference. To restore the world economy, three institutions were proposed to be established. First is World Bank, IMF and International Trade Organization. Among these three institutions, World Bank and IMF were established in 1945 as a result of Bretton Woods Conference, and the International Trade Organization did not formed, which was proposed in this conference. After 1 or 2 years, the GATT was formed, and which was modified to WTO, and we know as World Trade Organization. So therefore, the World Bank and IMF, which are the result of Bretton Woods Conference, that's why these two organizations, World Bank and IMF, are specialized agencies of UNO, and the WTO is the related agency of the UNO. Right? Now we will study these organizations one by one, which are related to Bretton Woods Conference. So the first is International Monetary Fund, which is also known as IMF. See, IMF was established on 27 December in 1945 and its headquarters is in Washington DC, America. Right? Its members are 189, और वहीं अगर हम 190वें कंट्री की बात करें, so Andorra has been announced to be 119th member of IMA. At present, the managing director of the IMF is Kristalina Georgieva and chief economist is Geeta Gopinath. IMF is an intergovernmental organization which was established having two objectives. First is stabilization of exchange rate and also to deal with the balance of payment. अब balance of payment क्या है? We have studied in the previous lecture. So IMF is an intergovernmental organization which was established to fix the two problems, or we can say that the first is stabilization of exchange rate and second deal with the balance of payment. Right? Now we will study what are the objectives. अब यहाँ से हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, you need to always remember that जो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी हो सकता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं या उनके जो फंक्शंस हैं या फिर रिलेशन बिटवीन द IMF एंड इंडिया, इस तरीके से जो है वो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो इनसे जैसे 3 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज IMF, तो ये 3 मार्कर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द IMF, ये 3 मार्कर क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है. या हो सकता है कि राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द IMF एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द 5 मार्कर क्वेश्चन. तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे 3 नंबर का, 5 नंबर का और 11 नंबर का क्वेश्चंस जो है वे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. देयरफॉर वी नीड टू प्रिपेयर every heading regarding 3 marker question, 5 marker question and 11 marker questions. So now we will study what are the objective of the IMF. The first is to deal with the balance of payment, right? Improvement in the balance of payment. This is the first objective of the IMF, and second rate is
rate, exchange rate, right? Stabilization of exchange rate, also supply adequate liquidity in the international trade among its members। जैसे अगर हमारे कंट्री की बात करें तो हमारे देश में जो है मनी सप्लाई विच इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय IMF थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, और वहीं पर अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड में जो एडुकेट मनी सप्लाई है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द IMF हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, देन इंश्योरिंग बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। एक तरीके से यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लिए मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि यहाँ पर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड हो सके। फोर्थ इज इंश्योरिंग स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट, right? Next is providing financial assistance to member countries when required, right? अगर कोई भी जो member countries है उसके means the member country has a problem of balance of payment या फिर कोई दूसरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जो IMF हो वो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड करा पाता है, राइट। ऑल्सो द IMF tries to reduce the poverty in the world and also provide cooperation to the member countries and international, right, organization to prevent the money laundering, right, and क्या हो जाएगा टेररिज्म। तो यहाँ पर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए IMF provides cooperation to its member countries and other international organizations. So these were the objectives of the IMF. Now we will study the work of IMF. So we will study work of the IMF. First is monitoring. IMF monitors the economic policies of its member countries. Also, IMF monitors the economic development programs of its member countries, and here IMF makes regular assessment of global prospects and it releases through the World Economic Outlook. This is the first work. Second thing is that when there is a needed or there is a problem of balance of payment, then IMF provide the financial assistant. Third is टेक्निकल असिस्टेंट, और टेक्निकल असिस्टेंट किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखिए एवरी कंट्री एक्सेप्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, और जाहिर सी बात है कि अलग अलग देशों के लिए जो है एक्सपीरियंस अलग होता है। तो यहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनमें इकोनॉमिक पॉलिसी के एग्जीक्यूशन के लिए IMF provides the technical assistance. Also, IMF provides the technical assistant for the execution and preparation of the policies related to monetary and exchange rate policies, expenditure management, right, tax policy and administration, banking and financial system supervision, and legislative drafting and data कलेक्शन। इनके लिए भी जो है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है IMF। नेक्स्ट इज स्पेशल ड्रॉविंग राइट। अब हमने पढ़ा है यहाँ पर कि IMF, राइट, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है IMF जो है वो सप्लाई ऑफ एडिक्वेट लिक्विडिटी। तो यहाँ पर जो एडिक्वेट लिक्विडिटी है वो सप्लाई IMF के द्वारा की जाती है, और इसके लिए जो है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स है। ये SDR है, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1971। अब IMF जो है वो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है वो हम यहाँ पर SDR से समझेंगे। देखिए व्हेनेवर, जैसे हमने ले लिया देयर इज अ कंट्री A और कंट्री क्या हो जाएगा V। अब ये दोनों अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं सो डेफिनेटली द कंट्री V हैज़ टू, जैसे इसने एक्सपोर्ट किया, कंट्री B हैज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंट्री A। नाउ द कंट्री V हैज़ डेफिनेटली प्रोवाइड द मनी इन द फॉर्म ऑफ द करेंसी ऑफ कैपिटल कंट्री A।
अब अगर जैसे मान लीजिए कि कंट्री बी के पास में इस अमेरिका की या इस देश की करेंसी नहीं है, तो वहां पर कंट्री बी जो है वो SDR के फॉर्म में भी क्या कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पे कर सकता है। तो एक तरीके से जो SDR है, SDR इज अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल फंड, right? So SDR is an international financial fund which was created by the IMF for the international liquidity control, and the SDR was started in 1971. ये चूंकि SDR जो है ये कोई भी करेंसी नहीं होता है, जो जितने भी द कंट्री विच इज हैविंग कोटा इन IMF, उस कोटे के बराबर जो है उस कंट्री को SDR दिया जाता है, राइट? और ये एक तरीके से एक पेपर पर लिखा होता है, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज पेपर गोल्ड। अब जो है जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपना जो है फॉरेन ट्रेड को एक्सचेंज कर सकते हैं, किसमें, SDR में कर सकते हैं, एंड द SDR कैन बी कन्वर्टेड इन दीज करेंसीज, जैसे US डॉलर हो जाएगा, यूरोज हो जाएगा, एन हो जाएगा, पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा, चाइनीज RMB हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, युआन हो जाएगा। तो SDR कैन बी कन्वर्टेड इन दीज करेंसीज, राइट? और जब कोई भी दो कंट्री हैं, इफ दे आर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग, तो वो अपने बिल्स को SDR में भी क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, एंड इट इज अ टाइप ऑफ करेंसी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। सो दिस वाज अबाउट द SDR। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द IMF. See what is the structure of the IMF and how it take decision, how the decisions are taken in the IMF. तो IMF की जो गवर्निंग बॉडी है, राइट, या IMF इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो जाएगा, एंड दिस बोर्ड ऑफ गवर्नर इज कंसिस्ट ऑफ गवर्नर विच इज अपॉइंटेड बाय एवरी मेंबर कंट्री। तो यहाँ पर जो गवर्नर है वो एवरी मेंबर कंट्री के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है, और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है यही या इसी के द्वारा IMF कंट्रोल होता है और मैनेज्ड होता है। अब यहाँ पर इफ देयर इज अ पॉलिसी, अगर इस पर डिसीजन लेना है तो इसके लिए वोटिंग होती है, और जो वोटिंग होती है उसकी मेथड क्या है कि यहाँ पर जो गवर्नर होता है, द गवर्नर विच इज अपॉइंटेड बाय अ मेंबर कंट्री हैज द 250 वोट्स। तो एवरी गवर्नर को 250 वोट्स होते हैं। इसके साथ ही देयर इज अ 1 एडिशनल वोट पर 1 लाख SDR, राइट? तो ये इस तरीके से जो है, जो SDR है उसके आधार पर क्या मिलेगी, 1 लाख पर उसको 1 एडिशनल क्या मिलेगी, वोट मिलेगी। सो इन दिस प्रोसेस इफ वी अंडरस्टैंड, एवरी मेंबर कंट्री हैज 250 votes, right? Because every country appoints a governor. But what is the difference? Difference is the SDR. Every country has a different SDR quota. For an example, USA has the largest SDR quota. Therefore, USA would have many additional votes. तो इस तरीके से हम सीधा कह सकते हैं कि द कंट्री विच इज हैविंग अ लार्जेस्ट कोटा, डेफिनेटली दैट कंट्री वुड हैव अ ग्रेटर वोटिंग पावर, और जिस कंट्री का कोटा कम है उसके पास में जो है वोटिंग पावर उसकी क्या होगी, कम होगी, राइट? तो इस तरीके से जो है द डिसीजंस आर टेकन इन द IMF हो जाएगा। और यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, इट मीट्स ट्वाइस इन अ ईयर, right? Now we will study what are the loan facilities which are provided by the IMF. So IMF provide these loan facilities. First is standby arrangement, right? Standby arrangement. If a particular country is having problem of balance of payment, या फिर उस country का जो balance of payment है वो unfavorable है, in this situation IMF provides standby arrangement loan facility. आफ्टर दैट फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, राइट? अगर किसी भी देश को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, सो हियर IMF प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन।
और ये जो होते हैं, ये दोनों जो लोन होते हैं, ये उसके कोटे जो होता कोटा होता है उसके आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इफ अ पर्टिकुलर कंट्री हैज टेकन SBA एंड FCL लोन्स, और अगर उसकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में है, राइट, तो प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी जो लाइन है, इससे जो लोन है वो सबसे लास्ट में दिए जाते हैं, सो दैट उसकी जो है इकोनॉमी जो है उसको रिवाइव किया जा सके। सो प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी जो लाइन होते हैं, ये सबसे लास्ट में ये लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि उस देश की जो इकोनॉमी है उसको बचाया जा सके। आल्सो IMF प्रोवाइड्स लैंडिंग फैसिलिटी टू लो इनकम कंट्रीज। Also, IMF provide debt relief and multilateral debt relief initiatives. So these were the loan facilities. Now we will understand IMF membership. अगर कोई भी देश IMF का सदस्य बनना चाहता है, so this has 3 steps. At first, if a country is a member of IVRD, which is also known as वर्ल्ड बैंक, राइट, यदि किसी भी कंट्री के पास में वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की मेंबरशिप है, देन दिस कंट्री इज एलिजिबल टू गेट द मेंबरशिप ऑफ द IMF. सेकंड थिंग इज दैट द कंट्री which want to member of IMF, he has to deposit certain contribution in the IMF, और उस कंट्रीब्यूशन से ही क्या निर्धारित होगा कि उसका कोटा कितना है, और इसी कोटा से उसकी जो है वो क्या निर्धारित होती है, वोटिंग पावर जो है निर्धारित होती है। और इफ दीज 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, देन दैट कंट्री हैज टू अप्लाई, राइट, बिफोर द IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड, राइट, और वहां पर अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं, देन डेफिनेटली दैट कंट्री वुड गेट द मेंबरशिप ऑफ द IMF, राइट। नाउ वी विल स्टडी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ IMF. See, when a particular country has taken loan from IMF, then that borrower country has to comply with these terms and conditions. The first is government, that country or the borrower country has to reduce the fiscal deficit. Second, that government or that country has to improve the or promote the privatization. Third thing is that the borrower country has to cut down the subsidies. And fourth thing is that that country has to reduce the number of government employees, right? Now we will study the drawbacks and improvement. See, if the question is asked what are the drawbacks and weaknesses of the IMF, or it can be also asked how can the working of IMF be improves, या फिर IMF को कैसे improve किया जा सकता है, this question can be asked. तो the first is, पहला तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर there is a dominance of America and allies European countries जो है IMF में, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका कोटा IMF में बहुत ज़्यादा है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर द IMF हैज़ प्रोवाइडेड लेस कोटा टू द इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज विच आर हैविंग अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा कि IMF का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, एक यूरोपियन होता है, राइट। Fourth thing is that if a particular country has to take loan from the IMF, then the borrower country has to follow many terms and conditions, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ द टर्म्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर अमेरिका हैज़ द लार्जेस्ट कोटा इन द IMF, देयरफॉर अमेरिका हैज़ इनडायरेक्ट वीटो पावर. सो दीज आर द वीकनेसेस और ड्रॉबैक्स ऑफ द IMF, राइट. अब अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ कैन बी द वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ द IMF बी इम्प्रूव्ड, राइट, या राइट डाउन द इम्प्रूवमेंट्स इन द
IMF, तो हम इन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करते हुए इंप्रूवमेंट्स को लिख सकते हैं। जैसे पहला हो जाएगा कि यहाँ पर जो अमेरिका का डोमिनेंस है ये कम होना चाहिए। दूसरा, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो इंडिया है, इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज को उनका कोटा जो है और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंडिया और वर्किंग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। यहाँ पर तीसरा, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF शुड बी अमंग द मेंबर कंट्रीज हो जाएगा। फिर जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं या टर्म्स है वो भी कम होनी चाहिए, और जो अमेरिका के पास में जो इनडायरेक्ट वीटो पावर है दैट शुड बी रिड्यूस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड what is the relationship between India and IMF, right? And this is also important for the exam point of view. The first is India is the founding member of the IMF, and in 1991 India has taken loan from the IMF, and as a result जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे 1991 के, जो इकोनॉमिक्स या LPG रिफॉर्म्स थे, राइट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन रिफॉर्म्स में एक तरीके से IMF ने भारत की मदद की थी। आल्सो इंडिया इज द फाइनेंसिंग नेशन ऑफ द IMF। फोर्थ इज आफ्टर द 14th review India's quota has been increased in the IMF from 2.44 to 2.76, and at present India has a 8th largest quota in the IMF. Also, अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था कि जो है IMF में कई वीकनेसेस और ड्रॉबैक्स भी हैं, एंड जो भारत है, भारत इज लीडिंग कंट्री ऑफ द, जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका एक तरीके से लीडर के तौर पर वहाँ पर जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उनकी डिमांड भारत करता है। सो इंडिया इज डिमांडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन द IMF. Also, India is always ready to increase in the role in the IMF, and India has taken loan from the IMF from time to time. So this is the IMF. Now we will study World Bank. See, World Bank is also result of the Bretton Woods conference, right? And World Bank was established on 27 December 1945, and it started functioning on June 25 in 1946, and the headquarters of World Bank is in Washington DC. At present there are 189 members in the World Bank, और जो 190वां है it has been announced as a अडोरा, और जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कौन है, डेविड मालपास है, राइट। जो वर्ल्ड बैंक है वो कोई एक बैंक नहीं है, वर्ल्ड बैंक इज अ ग्रुप ऑफ बैंक्स। सो वी विल study here the World Bank group. So World Bank is a group of these 5 institutions. First is International Bank for Reconstruction and Development, in short we say IBRD. Then International Development Agency, IDA. Then International Finance Corporation, IFC. Then Multilateral Investment Guarantee Association, MIGA. Then International Center for Settlement of Invest Dispute, right, disputes, ICSD. So the World Bank is actually group of these IBRD, IDA, IFC, MIGA and ICSD. इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस का जो है समूह को ही हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जानते हैं। और ये जो 5 की 5 ऑर्गेनाइजेशन है इनका अपना अपना अलग ऑब्जेक्टिव है और अलग अलग इनके क्या हैं, वर्क हैं। यहाँ पर अगर हम देखें IBRD, सो द मेन फंक्शन ऑफ IBRD इज टू eradicate poverty, or we can say that poverty alleviation is the objective of the IBRD, and IBRD provides loan to middle class countries, right, and the each member of the IBRD is also the member of IMF, right. सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर IDA, right. अगर हम देखें सो IBRD provides loan to middle income
कंट्रीज, और वहीं पर जो IDA है, IDA प्रोवाइड्स लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज. Also, the loan which is provided by IDA is a long term and interest free. और अगर हम देखें तो जो 80% पुअर कंट्रीज हैं वो इसी IDA से लॉन्ग टर्म और इंटरेस्ट फ्री जो है लोन लेते हैं. Therefore, the IDA is also known as soft loan window of the world. थर्ड यहाँ पर हो जाएगा IFC. The objective of IFC is to promote private institutional investment, also poverty alleviation and improvement in the standard of लिविंग. ये IFC का ऑब्जेक्टिव है. वहीं अगर हम देखें मीगा का है, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मीगा इज टू प्रमोट FDI, और FDI में भी यहाँ पर जो ग्रीन फील्ड होता है जिसको हमने देखा था, जो न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, द इन्वेस्टमेंट विच इज डन एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज नोन एज ग्रीनफील्ड FDI. तो ग्रीनफील्ड FDI को प्रमोट करता है. आल्सो जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी जो है मीगा प्रमोट करता है. मीगा आल्सो प्रमोट प्राइवेटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज. एंड द लास्ट इज ICSID. अब जो ICSID है, ये जो प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट हैं किसके, या तो मेंबर कंट्रीज के या जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है ICSID के माध्यम से. नाउ वी विल स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक. राइट, यहां पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक न केवल जो है इजी लोन प्रोवाइड कराता है, राइट, यहां पर वर्ल्ड बैंक इजी लोन प्रोवाइड कराने के साथ साथ यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी लोन उपलब्ध कराता है. देन वर्ल्ड बैंक आल्सो वर्क्स फॉर द poverty eradication, then environmental protection, then dispute settlement among its member countries. Also, sustainable growth is the objective of World Bank. Then agriculture and rural development, infrastructure development, then government program, financing the government program to reduce the poverty or for the environmental protection. आल्सो गवर्नमेंट प्रोग्राम जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको फंड करता है, और इनिशिएटिव फॉर द क्लीन एयर. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक. नाउ वी विल स्टडी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक. तो पहला क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड प्रोजेक्ट लोन. यहाँ पर जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो पोर्ट का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, उनके लिए जो है वो ऋण उपलब्ध कराता है. सेकेंड, इट आल्सो प्रोवाइड गारंटी टू टेक लोन. थर्ड इज टू मेक द मेंबर स्टेट सेल्फ रिलायंट. एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल फाइनेंस प्रॉब्लम्स सॉल्विंग. तो जो जितनी भी क्राइसिस की वजह से या बिकॉज ऑफ अदर रीजन जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्ल्ड बैंक वर्क्स टू रिजॉल्व दीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है ये रिपोर्ट्स भी जारी करता है. द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज आल्सो रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच इज द फेमस रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय द World Bank. Right, now we will study the relationship between India and World Bank. The first is, as you know that India is the founding member of IVRD, IDA and IFC. अब जो वर्ल्ड बैंक के 5 मेंबर कंट्रीज हैं उसमें से इंडिया इज हैविंग मेंबरशिप ऑफ द 4 ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट ICSID. नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक हैज provided loan facility for the Indian Railways in 1949. World Bank is also an important source for India for credit facility, also a important resource for the development projects in India. अगर हम देखें, so India has taken loans of about $98.2 million in these 74 years. और अगर हम अगले की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ टेकन लोन फॉर मैनी प्रोजेक्ट्स
जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा, हेल्थ सर्विस मिशन हो जाएगा, गंगा रिवर क्लीनिंग मिशन हो जाएगा, कोसी रिवर प्रोजेक्ट्स हो जाएगा। सो इन प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को फंडिंग की है। इसके साथ ही जब 2008 में ग्लोबल रिसेशन हुआ था उस समय पर भी वर्ल्ड बैंक ने 3 बिलियन का जो है फाइनेंशियल एड भारत को दिया था। इसके साथ ही बैंकिंग जो रिफॉर्म्स हैं उसमें एनपीए रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने जो है भारत की मदद की है। आल्सो वर्ल्ड बैंक हैज प्रोवाइडेड असिस्टेंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी फॉर higher education development in 2017, and if we talk about especially MP, then in 2016 Madhya Pradesh government has taken loan of 300 crores for the education development in MP, right? So this was all about World Bank. Now we will study the third organization, which is Asian Development Bank, right? अब यहाँ पर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इट इज अ मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट? तो एडीबी एक मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। और क्यों की गई थी? टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स। सो जो एशिया पैसिफिक रीजन्स है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ADB was established, right? And its headquarter is in Manila, Philippines. अब अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो ADB में 2 प्रकार के मेंबर हैं। एक तो क्या हो जाएगा कि जो एशिया पैसिफिक ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो ग्रुप का नाम है वो हो जाएगा द यूनाइटेड नेशंस एशिया एंड फार ईस्ट रीजन इकोनॉमिक कमीशन। एक तो इस ग्रुप के मेंबर्स हो जाएंगे और दूसरा हो जाएंगे नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज हो जाएंगे। तो ये 2 ग्रुप के जो हैं मेंबर्स ADB में हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो करेंटली ADB हैज़ अ टोटल 68 मेंबर्स, उसमें से 48 आर फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन और जो 20 हैं वो नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज जो कि किस में है? ADB में है। जो वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर है वो लगभग किसके समान है? वर्ल्ड बैंक के समान है। एक तरीके से इसकी जो वोटिंग पावर होती है, ADB में जो वोटिंग पावर होती है वो कोटा सिस्टम पर आधारित होती है, राइट? किस सिस्टम पर हो जाएगा? तो कोटा जो वोट सिस्टम है, अर्थात जिस कंट्री के पास में जितना ज़्यादा कोटा होगा उसकी वोटिंग पावर उतनी ही अधिक होगी, राइट? इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो US एंड जापान, राइट, दीज कंट्रीज होल्ड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द ADB, therefore they have the largest voting power in the ADB। और यही कारण है कि जो जापानीज होता है, राइट, कोई ने किस जो जापानीज होता है उससे ही ADB की प्रेसिडेंसी जी जाती है, राइट? और वर्तमान समय में जो ADB के प्रेसिडेंट हैं वो कौन हो जाएंगे? मसत्सुको असाकावा जो है वो एट प्रेजेंट जो है वो ADB के क्या है? प्रेसिडेंट है, राइट? अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के वो सिमिलर हैं किसके? वर्ल्ड बैंक के, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एशियन डेवलपमेंट के, दीज आर सब्जेक्ट टू द रीजनल और दीज आर सब्जेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पहला हो जाएगा स्टिमुलेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ट्रेड पॉलिसीज। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ट्रेड पॉलिसीज among the member countries। and third is efforts to reduce the poverty among the member countries। and fourth is to improve the status of women and enhance human development resources, also accelerate the direction of population planning and environmental protection। so these were the objectives of ADB, right? Now we will understand the structure of
ADB। तो हमने यहाँ पर देखा था कि इसका जो स्ट्रक्चर है या वर्किंग है वो वर्ल्ड बैंक से मिलती जुलती है, जिसको हम समझते हैं। यहाँ पर जो ADB की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है उसे बोर्ड ऑफ गवर्नर कहा जाता है, और इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, राइट। अब ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, राइट, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, ये अपनी सारी पावर्स को एक 12 मेंबर बॉडी, जिसको क्या कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर देता है। इसका मतलब हाईएस्ट डिसीजन जो बॉडी है वो क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक देश जो है वो अपना मेंबर क्या करता है, अपॉइंट करता है, और इसकी जो जितनी भी पावर्स होती हैं दीज आर डेलीगेटेड टू 12 मेंबर बॉडी विच इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ADB is also elected by the board of governors, और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। Now we will study major functions of the Asian Development Bank। तो यहाँ पर जो ADB है वो अपने जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटी एवं इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटी है, इट इज प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपिंग मेंबर स्टेट्स फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस हो जाएगा। दूसरा, जो जितने भी ADB के जो डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज होती हैं उनकी जो भी रिक्वेस्ट होती हैं उस रिक्वेस्ट को ये प्रोसेस करता है, राइट, और प्रोसेस द एड रिक्वेस्ट रिलेटेड टू कोहेरेंट डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स, किसकी, डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज की। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर ADB प्रिपेयर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसके साथ ही जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही जो डेवलपिंग पॉलिसी स्ट्रेटजीज हैं या क्रेडिट सोर्सेज हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं या गारंटी ग्रांट्स हैं या फिर टेक्निकल टूल्स हैं, ये सभी मेंबर कंट्रीज को जो है वो उपलब्ध कराता है या उनको इस पर असिस्ट करता है। नाउ वी विल स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, सो इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ADB, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट India has aided in policy efforts for the infrastructure development and poverty alleviation since 1986. Also, India is having 4th largest shareholder, which is 6.42% of the ADB, right? इसके साथ ही जो Ministry of Finance है, it deals with the matters related to ADB. इसके साथ ही at present India is executive director on the board of directors of the बैंक, और ADB का जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, लाओस और ताजिकिस्तान जैसे जो देश हैं इसमें भी आते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया इज द गवर्नर ऑफ इंडिया ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, और प्रेजेंटली जो 700 स्कीम्स हैं वो भारत में ADB की मदद से चलाई जा रही हैं, राइट। नाउ वी विल स्टडी द फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज द WTO ऑर्गेनाइजेशन। एज आई टोल्ड यू दैट in 1945 there was a Bretton Woods conference in Bretton Woods city, New Hampshire in USA, and in this conference the International Trade Organization was proposed but it could not be established, right. In 1947 23 countries signed to regulate the international trade, और वो जो साइन था उसको क्या कहा गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा गया। अब ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, इट हैज वीक रेगुलेशंस। इसके लिए या इसको इम्प्रूव करने के लिए 1992 से जो था उरुग्वे साइकिल की जो थी एक तरीके से वार्ता शुरू हुई, और मर्राकेश जो उद्घोषणा है या मर्राकेश प्रोक्लेमेशन इन 1994, इसके माध्यम से जो
है उसको WTO में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरीके से जो WTO है इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 1 1995। इट इज एक्चुअली 1995, राइट। एंड इट जो इसकी मीटिंग है वो हर 2 साल में क्या होती है, एक बार होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर, जिनेवा में होता है। और द वर्क ऑफ द WTO इज टू मेक रूल्स फॉर द वर्ल्ड ट्रेड। एक तरीके से WTO was established to control and regulate the वर्ल्ड ट्रेड। और WTO जो है वो इन थ्योरीज पर कार्य करता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी डेवलप जो कंट्री है वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना करे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के चलते हुए। दूसरा, द WTO provides the safety valve for the underdeveloped और डेवलपिंग कंट्री। थर्ड हो जाएगा कि यहां पर जो वर्ल्ड ट्रेड है उसमें ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना। सो दीज आर द थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी वाल्व एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। Now we will understand what are the objectives of the WTO. So we will see one by one. सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि वर्ल्ड ट्रेड में जितनी भी डिफिकल्टीज हैं उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करना या रिड्यूस करना, इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO। सेकेंड, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, राइट, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं जैसे कस्टम ड्यूटीज हो जाएंगे, राइट, या इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी हो जाएंगी, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं जिनकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड अफेक्ट होता है उन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना या हटाना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। तीसरा हो जाएगा रिड्यूसिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस, then lay down and implement rules related to international trade, and fourth is establish relations with business policies and environmental policies and stable sustainable development and optimum use of the resources। तो ये जो जितनी भी 4 थ्योरीज हैं इनमें यहाँ पर जो है रिलेशनशिप को एस्टेब्लिशमेंट करना, ये भी WTO का ऑब्जेक्टिव है। नाउ वी विल सी वर्क ऑफ द WTO, राइट। तो WTO के वर्क में पहला हो जाएगा नेगोशिएटिंग बिजनेस डील्स और ट्रेड बी डील्स अमंग द कंट्रीज, ताकि वर्ल्ड ट्रेड को बहुत ही आसान बनाया जा सके। दूसरा हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द पॉलिसीज रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन द वर्ल्ड ट्रेड। थर्ड थिंग इज दैट डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर 2 देशों के बीच में किसी ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट है तो उसको हल करना। फिर बिजनेस कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगा, बिजनेस पॉलिसी रिव्यू हो जाएगा, फिर reconciliation of trade policy taking help from the World Bank and IMF if there is a needed, and fourth is implementation of multilateral agreements and international trade agreements to improve the international trade। अब अगर हमने यहाँ पर बात की है कि मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट्स हैं तो यहाँ पर लगभग एट प्रेजेंट WTO मोर देन 60 एग्रीमेंट्स को जो है कंप्लाई करता है, जिसमें से हम प्रमुख को देखेंगे। जैसे पहला हो जाएगा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और इस एग्रीमेंट के तहत, राइट, इस एग्रीमेंट के तहत एग्रीकल्चरल जो कंट्रीज होती हैं उनको सब्सिडी देने की सहूलियत दी गई है। और जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अंबर बॉक्स, राइट, अंबर बॉक्स सब्सिडी, ये जो सब्सिडीज हैं ये दे सकते हैं। और ये किसके तहत हो सकता है, तो ये यहाँ पर एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एग्रीकल्चर AON एग्रीमेंट के माध्यम से दीज सब्सिडीज कैन बी प्रोवाइडेड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर।
देन दूसरा हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन क्या हो जाएगा यहाँ पर सर्विसेज हो जाएगा, तो जितनी भी सेवाएं हैं उनसे संबंधित। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर ट्रिप्स, अर्थात यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जैसे कॉपीराइट हो जाएगा, ट्रेडमार्क हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो जाएगा, राइट, जियोलॉजिकल इंडिकेटर्स हो जाएंगे, ट्रेड डिस्टिंक्शंस हो जाएंगे, इन सब को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर ट्रिप्स जो है एग्रीमेंट हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन क्या हो जाएगा गुड्स हो जाएगा। और भी कई जो हैं रिलेशंस होते हैं जैसे जो है एग्रीमेंट ऑन सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड बैरियर्स, जो जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको सरल करने के लिए भी यहाँ पर WTO कई एग्रीमेंट्स को लागू करता है। अब इसके साथ ही एट प्रेजेंट जो करंट न्यूज़ में है वो हमको समझना है, दैट इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब देखिए जो मोस्ट फेवर्ड नेशन कंसेप्ट है वो है क्या, एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, if a particular has country given this status to a particular country, then उस कंट्री को सभी देशों के साथ में एक समान व्यवहार करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने ये मान लिया इंडिया हैज गिवन मोस्ट फेवर्ड नेशन टू 40 कंट्रीज, राइट, देन इंडिया हैज टू बिहेव इक्वली विद दीज 40 कंट्रीज, राइट। अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, बट बिकॉज ऑफ द पुलवामा अटैक द मोस्ट फेवर्ड नेशन हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम द पाकिस्तान। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है उसकी ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, पाकिस्तान को दिया था 1996 में और पुलवामा अटैक की वजह से हमने उससे वापस ले लिया है। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंसेप्ट आप समझते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं भाई, जब इकोनॉमिक बिहेवियर सभी देशों के साथ में एक समान होगा तो द एक्सपोर्ट विल बी इनकरेज्ड, और इसके साथ ही जो एक्सपोर्टेड विद लो या नो टैरिफ, जो जितने भी कंट्रीज होते हैं वो मोस्ट फेवर्ड नेशन से या तो जो लो या नो टैरिफ जो है वैल्यू उनके लिए रखते हैं। इसके साथ ही लीगल जो जितने भी रूल्स होते हैं या हैसलेस होते हैं वो भी क्या किए जाते हैं, कम किए जाते हैं। एक तरीके से ये जो दर्जा है ये वर्ल्ड ट्रेड को और इम्प्रूव करता है। नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन WTO एंड India, right? India has been the founding member of WTO also gets, right, which was established in 1947 और WTO in 1995। इन दोनों का जो है वो फाउंडिंग मेंबर रह चुका है। अब एट प्रेजेंट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड भारत को डेवलपिंग कंट्री से निकलकर डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में सम्मिलित होना, एंड फॉर दैट इंडिया हैज़ टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट। और जाहिर सी बात है अगर भारत को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो जहां पर भी टैरिफ अधिक होंगे वहां पर भारत के जो है टैरिफ क्या होंगे, भारत का एक्सपोर्ट कम होगा। इसीलिए भारत को वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर कॉर्पोरेट करना है ताकि जो है it take necessary action to reduce the tariff in the countries, right। इसके साथ ही यहाँ पर जो WTO है वो इकोनॉमिक पावर्स जैसे बात करें चाइना है या अमेरिका है, इनको एक तरीके से कोऑर्डिनेट करता है या इनमें कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करता है ताकि जो मल्टीलेटरल ट्रेड जो है मल्टीलेटरल जो ट्रेड कंसेप्ट है इट कैन बी प्रिजर्व और इट कैन बी सेव्ड। इसके साथ ही इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है और WTO में जो भी वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाने के लिए फैसले लिए जाते हैं उसमें भारत तथा उसके जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी बात स्पष्ट रूप से रखने के लिए भारत डेवलपिंग कंट्रीज का क्या करता है,
नेतृत्व करता है और विश्व व्यापार को आसान बनाने के लिए भारत ने जितने भी क्वांटिटेटिव जो थे रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी हटा दिए हैं। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप था WTO एवं इंडिया का, राइट। अब हम यहाँ पर जो है जितने भी पढ़ेंगे वो हम ट्रेड एग्रीमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। और जितने भी जैसे हमने पढ़ा कि जो WTO है, राइट, या फिर हम नाफ्टा पढ़ेंगे, ओपेक पढ़ेंगे, ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये दरअसल ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं। अब आप समझिए क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एवरी कंट्री वांट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट, और जो उसके इंपोर्ट है उसको रिड्यूस करना चाहता है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहता है। अब दुनिया में कुछ गिने चुने देश ही हैं जो अपने यहाँ पर क्या करते हैं कि फ्री ट्रेड पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। बाकी के जो कुछ कंट्रीज होते हैं वो प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसी होती है उसको लागू करते हैं ताकि अपने देश के जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको एक तरीके से वो एक्सपोर्ट से अफेक्ट ना हो। इसीलिए जो जितने भी कंट्री होते हैं वो अपने यहाँ आने वाले एक्सपोर्ट के लिए कई प्रकार के ट्रेड वेरिएंट्स को क्या करते हैं, रखते हैं, जिससे जो है वर्ल्ड ट्रेड या हम ये कहें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है। अब हो सकता है कि अगर दो कंट्रीज़ हैं और दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी XYZ कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, वेदर जो है इकोनॉमिक कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, मिलिट्री कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, और उस कॉमन इंटरेस्ट की वजह से अगर दोनों देश एग्रीमेंट कर लें कि हम जो सामान आपके यहाँ पर बेचेंगे आप उस पर जो भी टैरिफ ड्यूटी है, राइट, या जो भी एक्सपोर्ट टैरिफ है वो आप हटा लीजिए ताकि सस्ते दर पर जो सामान है वो उस देश में आसानी से सेल हो जाए और वही देश जो है वो फैसिलिटी यह देश भी उपलब्ध करे। तो इससे ये जो होता है इसको ही क्या बोला जाता है, ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है, राइट। अब हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर नाफ्टा हो जाएगा, विच इज द नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब अगर हम देखें तो जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में 3 प्रमुख देश हैं, अमेरिका, कनाडा और क्या हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। सो नाफ्टा इज एक्चुअली द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज 3 कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको हो जाएगा, राइट। एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन January 1 in 1994। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैंने पहले भी बताया है कि इट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, विच मीन्स दैट ये जो तीनों देश हैं ये 2015 तक जितने भी इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा लेंगे और इस तरीके से ये एक फ्री ट्रेड जोन हो जाएगा। और इसकी वजह से पूरे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में इजीली जो है एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का किया जा सकता है, राइट। नाउ वी विल स्टडी द 6th ऑर्गेनाइजेशन विच इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, राइट। अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी? सी द पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल है ये दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में ही पाया जाता है, राइट। अगर ये सभी देश जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है वो अगर क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली जो रिसोर्सेज हैं वो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए जो जितने भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल मेक हम एक जो है वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि हम जो है पेट्रोलियम के प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें और फ्यूचर में जिन देशों की या जिन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग देशों की इकोनॉमी पेट्रोलियम पर बेस्ड है वो अफेक्ट ना हो। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड था। इसीलिए हम देखते हैं तो 10 से 14 सितंबर 1960 में, राइट, बिटवीन 10 to 14 सितंबर 1916 में
ईरान के बगदाद में बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसी बगदाद कॉन्फ्रेंस में 5 देश ईरान, इराक, कुवैत, राइट, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला, इन 5 देशों ने ही ओपेक की क्या की थी, स्थापना की थी 10 से 14 सितंबर 1960 के बीच में। और जो ओपेक है वो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं उनका एक इंटर गवर्नमेंटल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। इनिशियली इसके जो फाउंडिंग कंट्रीज थे वो केवल 5 थे, बट समय के साथ में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई और एट प्रेजेंट जो है ओपेक के मेंबर्स कितने हैं, 13 हैं, राइट, जिनमें हम देख सकते हैं यूनाइटेड अरब अमीराइट्स, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गेवान, राइट, इक्वेटोरियल गिनी, राइट। तो ये जो जितने भी देश हैं ये वर्तमान समय में इसके 13 मेंबर्स हैं। और इधर इंडोनेशिया या कतार एवं इक्वाडोर, राइट, इनकी बात करें तो इन्होंने वर्तमान समय में जो है इसकी सदस्यता छोड़ दी है, राइट। ये फाउंडिंग मेंबर हो जाएंगे, राइट, और बाकी के मेंबर्स ये हो जाएंगे और इसके साथ ही इन 3 देशों ने जो है ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है। और ओपेक का जो हेडक्वार्टर है विच इज इन वियना, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ओपेक। तो पहला हो जाएगा कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स कंट्रीज। तो जो जितने भी मेंबर सदस्य हैं उनकी पेट्रोलियम जो पॉलिसीज है उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना और उनमें इंटीग्रेशन को एस्टेब्लिश करना, ये पहला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दूसरा, टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल मार्केट्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिकल एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू इट्स कंज्यूमर्स। तीसरा हो जाएगा टू इंश्योर द स्टेबल इनकम फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफ द पर्सन इन्वेस्टिंग इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो इस कुल मिलाकर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो सके, इसके लिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टेबल जो है इनकम हो सके और जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, राइट। अगर हम इनके इम्पोर्टेंस की बात करें तो दुनिया का जो टोटल पेट्रोलियम है उसका 2/3 जो है पेट्रोलियम इन कंट्रीज में प्रोड्यूस किया, मतलब इन कंट्रीज में स्टोर है, और जिसमें से जो 1/3 है वो इन कंट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। सो ओपेक हैज स्टोरेज ऑफ 2/3 पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, और वहीं ये 1/3 जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, राइट। नाउ वी विल सी द 7th ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट नेशनल्स, राइट, विच इज आल्सो नोन एज एसियान, राइट। अब यहाँ पर जो एसियान है, एसियान इज अ सिविल, राइट, सिविल इकोनॉमिक नॉन प्रोटेक्टिव, राइट, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो जो जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनका सिविल, इकोनॉमिक, राइट, या नॉन मिलिट्री और क्या है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड एशियान वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अगस्त 8, 1967 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, राइट। अब जो एशियान है इसमें 10 सदस्य देश हैं, राइट, 10 मेंबर्स, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस एंड वियतनाम, राइट। और इसके साथ ही जो डायलॉग पार्टनर हैं वो कम से कम कितने रह चुके हैं, 12 रह चुके हैं। तो इसके 10 मेंबर हैं और इसके जो 12 फॉर्मर डायलॉग पार्टनर्स हैं उसमें कौन कौन है, इंडिया भी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है, चाइना है, रसिया है, राइट। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जकार्ता में है, राइट। अब हम इसका एम समझते हैं, राइट। सो जो एशियान है ये एक रीजनल क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इट वाज फॉर्म्ड विद द एम ऑफ
एक्सीलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट, दूसरा इंश्योरिंग सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट सेकेंड, एंड प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन साउथ ईस्ट एशिया। सो दीज आर द एम्स ऑफ एशियान। अब अगर हम बात करें कि एशियान और भारत का क्या रिलेशनशिप रहा है, तो देखिए बिकॉज ऑफ चाइनास स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स पॉलिसी, एक तरीके से जो चाइना है वो भारत के आसपास, राइट, भारत के जो जितनी भी नेबरिंग कंट्री हैं, चाहे श्रीलंका हो या यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान एवं श्रीलंका में मिलिट्री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक तरीके से भारत को घेर रहा है, राइट, थ्रू पल्स ऑफ स्ट्रिंग पॉलिसी, राइट। अब यदि हम एशियान और भारत के रिलेशनशिप की बात करें, सो यू नो वेरी वेल दैट जो चाइना है वो भारत को क्या कर रहा है, घेर रहा है। एक तरीके से श्रीलंका में मिलिट्री इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, फिर पाकिस्तान में मिलिट्री इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इसके काउंटर अटैक में भारत जो है वो 90 के दौर से ही, राइट, 90 से ही लुक ईस्ट पॉलिसी पर फोकस कर रहा है, और इस लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत एशियान जो है वो भारत के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी वजह से इंडिया एशियान जो है समिट वो कब से 2002 से प्रारंभ हुई है, एंड दिस समिट हेल्ड, राइट, जो है ये हर साल क्या की जाती है, संपन्न की जाती है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2002 से। अब एट प्रेजेंट द एशियान इज इन द करंट न्यूज बिकॉज ऑफ द आरकेप, राइट। क्या है यहाँ पर आरकेप विच मीन दैट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एक तरीके से जो आरकेप है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये क्या है, FTA है। सो आरकेप इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ द 15 कंट्रीज, राइट। अब 15 कंट्रीज क्यों, इसको हम अच्छे से समझते हैं। सो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज अ FTA, और इसमें टोटल 14 सदस्य होने थे, राइट, लेकिन भारत ने इसमें क्या किया, साइन नहीं किया है, देयरफॉर 15 देशों ने ही आरकेप में अभी हस्ताक्षर किए हैं। इसमें से 10 जो देश हैं वो कौन के हैं, एशियान के जो हैं फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो ये जो 10 मेंबर्स हैं ये आरकेप के सदस्य हो जाएंगे, राइट, और बाकी के जो 6, राइट, पहले 6 वर्तमान में 5 जो हैं वो एशियान के FTA पार्टनर्स हैं, जिनमें कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे चाइना हो जाएगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया हो जाएगा। और इसके साथ ही भारत भी एशियान का FTA पार्टनर था, लेकिन भारत ने यहाँ पर साइन नहीं किया, केवल और केवल 15 कंट्रीज ने ही आरकेप में साइन किया है। अब MPPSC में ये चीज बहुत अच्छे से पूछी जा सकती है कि व्हाई डिड इंडिया नॉट साइन द आरकेप, राइट, प्रोवाइड रीजंस फॉर दैट। तो यहाँ पर भारत ने आरकेप में साइन क्यों नहीं किया है वो समझते हैं। सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि इंडिया ने इसके पहले भी FTA साइन किए थे, और जिन देशों के साथ में भी FTA साइन किया था उन देशों के साथ में भी हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, विच मीन्स दैट इंडिया हैज़ ट्रेड डेफिसिट एक्सपीरियंस विद अर्लियर FTAs। देयरफॉर इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंडिया ने जो है आरकेप को साइन नहीं किया है। दूसरा हो जाएगा कि इफ़ इंडिया ज्वाइंस द आरकेप देन डेफिनेटली जो चाइना है वो पहले तो चाइना जो है वो हमारे देश में चीफ गुड्स एंड सर्विसेज को डंप करेगा, राइट, और अगर चाइनीज गुड्स एंड सर्विसेज हमारे मार्केट में आ जाएंगे देन डेफिनेटली इट वुड हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द इंडिया। और तीसरा कि इंडिया आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स एंड लोकल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि एक और यहाँ पर चाइना का चीफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनकी भरमार हो जाएगी भारत में। वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, सो दे हैव गुड क्वालिटी एग्रीकल्चरल
प्रोडक्ट्स। तो न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की वजह से हमारे एग्रीकल्चरल जो है प्रोडक्ट्स वो भी कंपटीशन से बाहर हो जाते, और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की वजह से भी हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अफेक्ट होती। इसीलिए हमने जो है आरकेप को साइन नहीं किया है। फिर जो जितने भी पार्टनर देश हैं उनमें टैरिफ्स को लेकर भी कई प्रकार के डिफरेंस हैं, देयरफॉर इंडिया डिड नॉट साइन द आरकेप, राइट। नाउ वी विल स्टडी द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉम्प्रिहेंशन, इट इज आल्सो नोन एज अ सार्क। जो सार्क है ये भी एक क्या है, रीजनल क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है। कितने देश का है ये? 8 कंट्रीज का है। और दीज 8 कंट्रीज, राइट, द सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन December 8, 1985 बाय दीज 8 कंट्रीज, राइट। एक्चुअली जब 8 दिसंबर 1985 को सार्क का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस समय पर इसमें केवल और केवल 7 कंट्रीज थे। इन अप्रैल 2007 जो सार्क की 17 समिट हुई थी उसमें अफगानिस्तान को जो थी इसकी मेंबरशिप दी गई थी। तो एट प्रेजेंट जो है वो सार्क में कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं। और एस्टेब्लिशमेंट के समय पर इसमें कितने कंट्रीज थे? 7 कंट्रीज थे, जो कि कौन कौन से हैं? जैसे इंडिया हो जाएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड भूटान। ये इसके क्या है? फाउंडिंग मेंबर हैं। 8वां जो सदस्य हो जाएगा वो हो जाएगा अफगानिस्तान। और इसमें इंडिया के सभी नेबरिंग जो है वो कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग, राइट, सॉरी, एक्सक्लूडिंग द म्यांमार। म्यांमार में उस समय पे मिलिट्री रूल था, देयरफॉर म्यांमार वाज नॉट इंक्लूडेड इन द सार्क, राइट। अब यहां पर जो सार्क है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? तो उसका है यहां पर, इट सार्क इज द कलेक्टिव एफर्ट टू इंप्रूव द म्यूचुअल रिलेशन। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सॉल्व रीजनल प्रॉब्लम्स एंड मेनली फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस ऑफ द डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो जितने भी पड़ोसी देश है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, या जो जितने भी रीजन्स के, राइट, साउथ एशियन जो रीजन है उसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, राइट। रीजनल जो उनकी प्रॉब्लम्स है लाइक इलीगल ट्रेड हो जाएगा, राइट, बॉर्डर पोरस होने के कारण इलीगल ट्रेड को रोकना, माइग्रेशन को रोकना, राइट, एवं जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी इम्प्रूव करना। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में है। इसके साथ ही जो यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, जापान है, मॉरिशस है, म्यांमार, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो है इसके ऑब्जर्वर भी है। किसके? सार्क के। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सार्क जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका पहला ऑब्जेक्टिव है एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द साउथ एशियन रीजन। सेकेंड इज bring about qualitative improvement in the quality of life of, right, life of South Asian people along with their welfare and upliftment। तो जो साउथ एशियन जितने भी नागरिक हैं उनमें अपलिफ्टमेंट लाना, राइट, एंड प्रमोट रैपिड एक्टिव कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन इन इकोनॉमिक फील्ड हो जाएगा, सोशल फील्ड हो जाएगा, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। तो इन सभी फील्ड में रैपिड एक्टिव कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, राइट। इसके साथ ही इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें प्लेस द इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज फर्मली इन द इंटरनेशनल फोरम, लाइक WTO है, वर्ल्ड बैंक है, राइट, और WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है। इनमें जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उन कॉमन इंटरेस्ट को रखना। आल्सो इंक्रीज द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड मेक एफर्ट्स टू
टू सॉल्व द ईच अदर्स प्रॉब्लम टुगेदर। जैसे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है या फिर जो इलीगल जो है ट्रेड हो रहा है, राइट, या फिर जो जितने भी मादक पदार्थों की जो ट्रेड होता है, राइट, तस्करी होती है, उसको, उन समस्याओं को दूर करना। इसके साथ ही स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग नेशंस और स्ट्रेंथन बाय प्रमोटिंग ग्रुप सेल्फ रिलायंस। तो ये थे यहाँ पर सार्क के इतने ऑब्जेक्टिव्स। अब हम यहाँ पर सार्क का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो सार्क का स्ट्रक्चर है इसमें कई बॉडीज हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, समिट ऑफ द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज, एग्जीक्यूटिव कमिटी, टेक्निकल कमिटीज एंड सेक्रेटरीट्स। ये इतनी जो है वो सार्क की क्या है, बॉडीज हैं। इसमें से जो समिट ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, राइट, समिट ऑफ स्टेट ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑर्गन ऑफ द क्या है, सार्क है। इसके साथ ही जो दूसरे नंबर की जो है, तो सर्वोच्च बॉडी कौन सी है इसमें, समिट ऑफ द, राइट, समिट ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। दूसरी जो बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट हैज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल। और इसमें जो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसके काम होते हैं डिटरमाइनिंग सार्क पॉलिसीज। देन सेकेंड इज review the progress of these policies, review the ongoing developmental policies, then exploring possibilities of new areas of cooperation, and fourth is identifying the necessary process for the new collaboration areas, right? Now we will study India's position and importance in the SAARC. देखिए, among the SAARC countries India is better developed, India has better technology, India has better defense policies. Therefore, there is a huge importance of India in the SAARC group. और वहीं पर इंडिया का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो सार्क मेंबर से होता है, इसलिए सार्क भी इंडिया के लिए बहुत क्या है, ज़रूरी हो जाता है। आल्सो इंडिया फॉलोज वसुधैव कुटुंबकम, राइट, जो इसकी नीति है वो भारत के द्वारा फॉलो की जाती है। इसके साथ ही भारत हमेशा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को क्या करता है, प्रमोट करता है। इसके साथ ही जो कॉमन हिस्टोरिकल या रीजनल, पॉलिटिकल, कल्चरल एवं डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ हैं, इन सब की वजह से भारत हमेशा अपने नेबर्स के साथ में अच्छे संबंध बनाना चाहता है। इसके साथ ही इंडिया का जो है इम्पोर्टेंस सार्क में भी बहुत अधिक है और इन सार्क इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। सो वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दीज पॉइंट्स। फर्स्ट इज फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम समझते हैं कि सार्क भारत के लिए कैसे ज़रूरी है। पहली चीज़ देखें तो इंडिया का जो 7% इंडिया का जो है 70% शेयर इन द सार्क रीजन इन द टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन है। तो मैंने पहले भी बताया है कि सार्क ग्रुप का लगभग 70% जो जनसंख्या है एवं क्षेत्रफल है वो भारत में है। इसके साथ ही जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनको भारत $15 बिलियन का क्या करता है, ट्रेड करता है। और इसमें से भी अगर हम देखें तो भारत का जो है एक्सपोर्ट कितना है, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा 17.5 बिलियन एंड इंपोर्ट कितने का हो जाएगा 2.5 बिलियन। इसका मतलब इंडिया का मेंबर कंट्रीज के साथ में एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट भी अच्छा खासा है। 17.5 बिलियन का एक्सपोर्ट है और 2.5 बिलियन का इंपोर्ट है। और साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उसमें से अगर नेपाल और भूटान की बात करें तो उनका जो 50% जो ट्रेड है वो किसके साथ में होता है, भारत के साथ में होता है, राइट। इसके साथ ही जो साउथ एशियन सार्क कंट्रीज हैं वो
अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए भारत पर भी क्या है, निर्भर है। नाउ वी विल स्टडी इंडियाज इंपॉर्टेंस इन सार्क इन पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन की अगर चर्चा करें तो जो मेंबर कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, नेपाल have been supported economically and technically for the development projects and development works by India. Second, India is also working on many energy related projects in Bhutan and Nepal. Also, India is investing in tourism, education, construction and also वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है इंडिया के सहयोग के साथ में। अगर हम देखें इंडियन इन्वेस्टमेंट जो है 200 मिलियन जो कि श्रीलंका में है, इट इज़ लाइकली टू बी इंक्रीज्ड टू 1 बिलियन और इससे श्रीलंका में भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, राइट। इसके साथ ही जो इंडिया है और श्रीलंका है, बोथ कंट्रीज आर आल्सो कोऑपरेटिंग इन टूरिज्म सेक्टर, होटल्स, एयरपोर्ट्स एंड फिशरी इंडस्ट्रीज हो जाएगा, राइट। Also, India is helping in the development of economic corridors and infrastructure development in Afghanistan also. तो यहाँ पर भारत जो सार्क के जितने भी सदस्य देश हैं उनमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को असिस्ट कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा सार्क को भी समझ चुके हैं, राइट। अब इसके साथ ही वी हैव स्टडीड द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेकंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रोल ऑफ foreign capital, then multinational companies, and at last these 8 important organizations like IMF, World Bank, ADB, then WTO, then OPEC, then NAFTA हो जाएगा, right, then ASEAN and then SAARC. अब जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, so at last I provide the model questions for you so that you could write these answer, you could solve these questions at home और आपकी जो है जो राइटिंग स्किल है वो और भी अच्छी इम्प्रूव हो जाए। सो प्लीज ट्राई टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो एट फर्स्ट वी विल सी 3 मार्कर जो है क्वेश्चंस को हम देखेंगे यहाँ पर। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दीज इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क, IMF, वर्ल्ड बैंक, नाफ्टा, right, what is foreign institutional investment, what is foreign portfolio investment, what is the current account deficit, and what is an invisible items. You need to write down the short note on 3 marker questions and for writing the answer जो है आपको हमेशा यहाँ पर या तो you can provide factual information और आप डेफिनेशन भी जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही नवा जो क्वेश्चन है वो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देन व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज, व्हाट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट, विजिबल आइटम्स, टॉप इंपोर्ट पार्टनर ऑफ इंडिया, एंड 15 व्हाट इज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। सो दीज वर द 3 marker questions. Now you need to practice the 5 marker questions also. 5 marker में पहला हो जाएगा write the measures to reduce current account deficit. Second, throw light on the importance of international trade. Third question is discuss the relationship between India and the World Bank जिसको हमने आज के लेक्चर में ही पढ़ा है. Fourth is discuss the steps taken for the growth of foreign direct investment in India, right. Fifth question is how the process of multinational companies has a negative impact on the economy, right. The sixth question is discuss the negative aspect of the international trade, and seventh is discuss the relations between ASEAN and India. So these were the 5 marker questions. Now 11 marker question, and I suggest you that
For writing a 11 marker question, at first we need to introduce the question, then we need to write the body and then conclusion. जैसे इसमें सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, उसके बाद में बॉडी में ये पूरा राइट आंसर कर सकते हैं और देन क्या हो जाएगा कंक्लूजन. सो द फर्स्ट इज व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिस्कस द मेजर्स टू डील विद द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट. सेकेंड हो जाएगा एक्सप्लेन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन द इंडियन इकोनॉमी. राइट, सो मल्टीनेशनल कंपनीज का जो महत्व है वो आपको लिखना है. थर्ड इज थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल. फोर्थ क्वेश्चन इज suggest measures to overcome the shortcomings of the IMF. And the fifth question is discuss the main points of new import export policy, which is 2015-20 policy. Right, so these were the model questions. और इसके साथ ही we have finished our unit first of part B of paper second. In the next lecture we will start the new unit, which is the unit second regarding MP economics, right, yeah, economy of MP. So we will meet with next topic. Till then, thank you.